Good morning, student. How are you all? Hope you all are doing great. So today I am going to teach you a first type of future tense, that is simple future tense, or you can say the future indefinite tense. So as you all know that we have already done the present tense or the past tense. All right. So in this particular video, we will see the what do we mean by the simple future tense or the simple indefinite future indefinite tense, and where do we use this tense and the structure of this tense, that is positive, negative or interrogative. Let's start. Okay, so what do we mean by the simple future tense or this future indefinite tense? So as you all know कि indefinite का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिटी थिंग्स होती है, पास्ट में पास्ट के, फ्यूचर में future की. All right. So future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future. Means ऐसा कोई action जो अभी तक नहीं हुआ हो और वो कब होएगा, future में complete होगा. For example, Billy will play soccer after 1 hour. So Billy क्या करती है, खेलेगी soccer. Soccer एक sport होता है, that is football. फुटबॉल वो खेलेगी कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद. All right, so there is no planning or intention in the future sentences used in the future indefinite tense. Means future indefinite tense क्या होता है, जिसमें कोई भी किसी भी सेंटेंस के लिए या कुछ भी एक्शन के लिए आपको प्लानिंग की नीड नहीं होती और कोई इंटेंशन नहीं होता, उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. All right. Now see some example that you will understand more. Sarah will be a mother. So Sarah क्या बनेगी, मदर बनेगी, मतलब अब फ्यूचर में वो मदर बनेगी, राइट. विंटर विल कम अगेन, विंटर वापस आएगी, यानी फ्यूचर में वो वापस आएगी. विल जेसिका सी दैट वुमेन इन योर स्कूल. वी विल लिव इन द डिफरेंट सिटी, मतलब हम डिफरेंट सिटी में रहेंगे, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अब हम ऐसा करेंगे और यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ लिविंग स्टेटस होगा. विल दे लर्न इंग्लिश नेक्स्ट मंथ. सो हियर द स्पेलिंग ऑफ मंथ इज इनकरेक्ट. MONTH. ऑल राइट. सो विल दे लर्न इंग्लिश नेक्स्ट मंथ, क्या वो नेक्स्ट मंथ में इंग्लिश पढ़ेंगे. Will we come to see us in winter? Will he make a cake on Monday? All right. So now we'll see the structure of simple future tense or future indefinite tense. So the first is positive, negative or interrogative. Plus sign is positive, minus is negative and question mark is interrogative. All right. So here the positive structure is subject plus will or shall plus first form of the verb and the rest of the sentence. So here in simple future tense we use will or shall as a helping verb. See, in present tense or past tense we use different kinds of helping verb. Means in present tense we use is, am, are, does, right, and do and has and have. But in past tense we see did and had or was or verb. So as I already told you, there are two types of helping verb. First is auxiliary helping verb and the second is modal verb. So in auxiliary verbs there are three kinds of auxiliary verbs: to, be, to do and to have. All right. So ये थ्री काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. टू बी की फैमिली में हमें इज, एम, आर, वॉज, वर मिल जाता है. इज, एम, आर को हम प्रेजेंट में और वॉज, वर को हम पास्ट में यूज करते हैं. टू डू की फैमिली में डू, डज और डिड. सो डू और डज वी यूज इन प्रेजेंट टेंस और डिड वी यूज इन पास्ट टेंस ओनली. एंड टू हैव की फैमिली में वी गॉट हैज, हैव और हैड. सो हैज और हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट में और हैड हम यूज करते हैं पास्ट में. अब व्हाट अबाउट द फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस के पास क्या बचा, मीन्स सारे हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट और पास्ट ने ले लिया. अब फ्यूचर टेंस को भी हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा. सो हेल्पिंग वर्ब ने बोला मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स तो सारे प्रेजेंट और पास्ट को
हैंड ओवर कर दिए हैं. नाउ आई हैव ओनली वन वर्ब दैट इज मोडाल वर्ब. सो मोडाल वर्ब में से कुछ ले लो. तो यहाँ फ्यूचर टेंस से सोचा ठीक है मैं मोडाल वर्ब में से दो हेल्पिंग वर्ब्स ले लेता हूँ, दो मोडाल्स ले लेता हूँ, दैट इज विल और शेल. तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस ने विल और शेल का यूज किया. और अब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है. दैट्स व्हाई यहाँ पे हमेशा क्या लगता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, सो नाउ सी द सेंटेंस. आई विल गो टू थाईलैंड, यानी मैं थाईलैंड जाऊंगा, यानी पॉजिटिव में हो रही है, ये थाईलैंड जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है. आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, मैं थाईलैंड नहीं जाऊंगा. विल यू गो टू थाईलैंड, क्या तुम थाईलैंड जाओगे. सो नेगेटिव की बात होती है, नेगेटिव सेंटेंस विल सी कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और वोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है. और इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है. ऑलराइट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही नॉट का यूज होता है इन अ नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ सी सम एग्जांपल. द फ्यूचर सिंपल टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड. मीन्स अभी हैपन नहीं हुआ, फ्यूचर में वो कंप्लीट होगी. सो आई शैल प्ले, आई शैल नॉट प्ले, शैल आई प्ले. यू विल प्ले, यू वोंट प्ले, विल यू प्ले. मीन्स तुम खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे, क्या तुम खेलोगे. तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या तुम खेलोगे या फ्यूचर में तुम नहीं खेलोगे, राइट, या तुम खेलोगे. वी शैल प्ले, वी शैल नॉट प्ले, वी विल प्ले, ही विल प्ले, ही वोंट प्ले, शैल ही प्ले. शी विल प्ले, शी वोंट प्ले, विल शी प्ले, इट विल प्ले, इट वोंट प्ले, it will play, they will play, they won't play, will they play. So यहाँ पर देखोगे कि सबके साथ हम shall और will का यूज करते हैं, whether our subject is singular और plural और first person, second person, third person, doesn't matter. हम सबके साथ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, shall और will का यूज करेंगे. See यहाँ पे हमने I के साथ भी हमने shall का यूज किया, you के साथ भी हम will और shall का यूज कर सकते हैं, we के साथ भी he, she, it. मीन्स कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम सबके साथ shall और will का यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, बट shall और will का कब कब यूज करना है, कब हमको shall का यूज करना है, कब हमें will का यूज करना है, लेट्स सी. सो हियर will के मामले में ये चीज आती है कि will हम कभी भी यूज कर सकते हैं. मीन्स वी कैन यूज will with the first person, second person और third person. First person means I, we, second person you, your, and third person is he, she, it or some name. Alright, but shall में अब प्रॉब्लम आती है कि shall का हम कहाँ का यूज कर सकते हैं. वैसे तो हम shall का यूज जहाँ पे हम will का यूज करते हैं वहीं पे shall का भी यूज करते हैं. मतलब पहले ऐसा कहा जाता था कि shall का यूज करने के लिए हम shall से फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, that is I और we only, राइट. बट अब कुछ चेंजेस हो गए हैं और चेंजेस ये कहते हैं हमें कि वी कैन यूज shall एनीवेयर और will एनीवेयर. मतलब हम shall और will का यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई इन अ फ्यूचर टेंस ओनली, राइट. सो कुछ स्लाइटली चेंजेस हैं. मतलब ये देखिए कि हाँ हम किस सिचुएशन पे ज़्यादा shall का यूज कर सकते हैं. will तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, बट shall का यूज हम ज़्यादा कहाँ कर सकते हैं, लेट्स सी. सजेशन. अब कभी हम सजेशन की बात करते हैं तो सजेशन के टाइम पे हम shall का यूज ज़्यादा कर सकते हैं. Shall I get pizza for dinner tonight? Offering और volunteering के लिए टाइम भी we can use shall, like the bags look heavy, shall I carry it for you? Instruction के टाइम पे हम shall का यूज कर सकते हैं. What shall I do with your mail when it arrives? Promise you shall be the first person to know. And confirmation, I shall meet you there at 7. Alright, but shall, the modal verb shall is not used much nowadays. We all know that कि nowadays shall का यूज हम बहुत कम करते हैं. Instead of shall, we love to use will. So it may still be found in formal speech and some legal documents. So अब क्या रह गया है कि कुछ formal speech में, more politeness में ही हम shall का यूज करते हैं और सब कुछ legal documents में. Other than हम सिर्फ will का ही यूज करते हैं. The most common use of shall in everyday English is in the question that offer or suggest. Offer suggest के टाइम पे ही हम shall का यूज करते हैं, shall I और shall we. Originally shall was used instead of will in first person with I and we when talking about the future. Means जब हम future की बात करते हैं तभी हम क्या करेंगे, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ऐसा होता था कि I और we के साथ हम shall का यूज करेंगे और will का यूज नहीं करेंगे.
राइट। बट अब व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करें, बट अब ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि कब शैल का यूज करना है, कब विल का यूज करना है। वैसे आप कभी भी शैल और विल का यूज कर सकते हैं, बट जब मोर पोलाइट सिचुएशन हो या इंस्ट्रक्शन हो या ऑफर हो या फॉर्मल स्पीच हो, दैट टाइम आप शैल का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो now we'll see the where do we use the simple future tense or simple indefinite tense. Clear? So willingness मतलब होता है किसी चीज को आप willingly मतलब अपनी मर्जी से, अपनी विश से करते हैं, राइट। और अनविलिंगनेस जिसे आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, राइट। सो द फोन इज रिंगिंग, आई विल गेट इट। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो दो सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस फर्स्ट सेंटेंस जो है ये कह रहा है कि फोन क्या हो रहा है, फोन की रिंग बज रही है ना, फोन बज रहा है। सो आई विल गेट इट, मैं इसे ले आता हूँ। तो ये जो फर्स्ट एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, और जो सेकंड एक्शन है वो फ्यूचर में हम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्शन हमें ऐसा करने के लिए हम फर्स्ट एक्शन के कारण उसको विलिंगली सेकंड जो एक्शन है वो करना चाहते हैं। सो ये एट द प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा है। क्लियर? आई विल हेल्प यू मूव टुमारो, मैं तुम्हें कल मूव करने में हेल्प करूंगा। सो ये प्रॉमिस हो रही है, या ऑफर करने में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। नाउ सम रिफ्यूजल एक्शंस भी हम देखते हैं। ही वोंट टेल मी हिज एज, वो अपनी एज नहीं बताएगा मुझे, ठीक है। तो ये रिफ्यूजल में कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं हम फ्यूचर फैक्ट्स। अब कुछ फ्यूचर फैक्ट्स में भी वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो द सन विल राइज टुमारो एट 7 AM। सपोज ऐसा होता है कि हर सुबह 7 बजे सन राइज होता है, मान लीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं कि 7 बजे सन राइज होता है, बट मान लीजिए ये टाइम फिक्स है और 7 बजे ही सन राइज होता है, तो ये फ्यूचर फैक्ट हो गया। तो जो भी फ्यूचर फैक्ट होता है, जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, वो हमेशा किस में आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, राइट। बिकॉज फ्यूचर फैक्ट दैट वी कैन नॉट चेंज इट, फ्यूचर फैक्ट्स और प्रेजेंट। और द सन विल सेट एट 8 PM टुनाइट। अब सन जो है वो सेट होता है 8 PM पे टुनाइट। तो अगर वो 8 PM पे रोज सेट होता है तो नोबडी कैन चेंज इट। ऑलराइट, सो कुछ विलिंगनेस और फ्यूचर फैक्ट्स में भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सी द फ्यूचर प्रेडिक्शन, यानी हम जब कोई प्रिडिक्ट करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो दैट टाइम भी हम इसका यूज करते हैं, इस टेंस का। द सन विल राइज एट 7 PM, सनराइज होगा किस पे, 7 AM पे। तो हमने ये प्रिडिक्ट करा है, अनुमान लगा है। जैसे भी मैं बोलूँ इंडिया विल विन द मैच टुमारो, मतलब कल इंडिया क्या है, मैच जीत जाएगी। तो मैंने प्रिडिक्ट किया है, अनुमान लगा है। वी डोंट नो कि कल क्या होगा, राइट। हम सिर्फ अब प्रिडिक्शन हम क्यों लगाते हैं कि हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है या थोड़ा बहुत श्योर होते हैं हम, तब हम प्रिडिक्शन करते हैं। आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो सब प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल और ऑफर्स पे भी हम करते हैं, जो मैंने भी आपको बताया है। आई हेल्प यू विद योर होमवर्क। फ्यूचर कंडीशनल, सो द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो यूज्ड इन द कंडीशनल sentences, means if it doesn't rain we will go back to the park. So यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर कंडीशन फर्स्ट एक्शन हमारे कंडीशन है, तो सेकेंड एक्शन ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। मीन्स अगर बरसात नहीं होती है तो हम कहाँ जाएंगे, हम पार्क में जाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट एक्शन नहीं होता है तो सेकेंड एक्शन हम करेंगे फ्यूचर में। ऑलराइट, जैसे सपोज आई से कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो फर्स्ट एक्शन क्या था, अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, फ्यूचर में पास हो जाओगे। प्रेजेंट का काम अगर आप अच्छे से करते हो तो। सो एक चीज आप थोड़ा याद रखिएगा कि वी डू नॉट यूज शैल और विल इन इफ क्लॉज और टेम्पोरल क्लॉजेस, राइट। सो इफ क्लॉज के साथ हम कभी भी शैल और विल का यूज करेंगे। टेम्पोरल क्लॉजेस क्या होते हैं, लाइक as soon as or unless, like when, while, as before, after, until, by the time. All right, so the going to form, besides using shall and will, we also use the be, going to, am, as, are, going to main verb to express simple future tense. तो अब simple future tense को express करने के लिए हम going to form का भी use कर सकते हैं, जिसमें am और am is are का हम use करते हैं with the main form of the verb and add going to with that. All right, so see
जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो बी गोइंग टू प्लान और इंटेंशन. कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ इंटेंशन होते हैं, जिसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, गोइंग टू का. फ्यूचर प्रेडिक्शन होते हैं. अब कुछ प्लान्स और इंटेंशन कैसे, जैसे वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क. ए बोल रहा है कि हमें किसके लिए जाना है, दूध वगैरह लेने के लिए बाहर निकलना है. बी बोलता है आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम. वो बोलता है यस मैं कुछ लेने जाऊंगा. ऑलराइट, तो फ्यूचर अब ये हो गए प्लान और इंटेंशन हो गए कि ऑलरेडी उनके प्लान थे, कुछ प्री प्लान था इसलिए उन्होंने फ्यूचर में किया, तो तब हम गोइंग टू का यूज करेंगे. फ्यूचर प्रेडिक्शन, द स्काई इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इट्स गोइंग टू रेन. अब कुछ प्रेडिक्शन के टाइम पे भी हम गोइंग टू का यूज करेंगे. जब क्या है, स्काई के डार्कर मतलब डार्कर पे डार्कर होता जा रहा है, मीन्स क्लाउड्स होंगे उसमें, इसलिए क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है. अब फ्यूचर प्रेडिक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ. प्लान और इंटेंशन, आई एम गोइंग टू ड्राइव फॉर वर्क टुमारो, वी आर गोइंग टू फुटबॉल गेम ऑन संडे. प्रिडिक्शन, अब देखिए, अब मैंने ऐसा बोला कि हम प्लान, जैसे पहले था कि प्लान और इंटेंशन, कोई भी प्लान हम कर लेते हैं तो वो तो हमें पता है कि प्री प्लान होती है, हमारी इंटेंशनली कुछ किया हुआ होता है, तो उस टाइम हम गोइंग टू का यूज करते हैं. बट प्रिडिक्शन में हम विल का भी यूज करते हैं, गोइंग टू का भी यूज करते हैं. हाउ, सी, आप डिफाइन डिफरेंस कैसे इसमें रिकॉग्नाइज करोगे. सो फर्स्ट थिंग इज आई थिंक आई विल गेट अ रेज दिस ईयर. मीन्स मैं सोचता हूँ कि मैं इस ईयर पे रेज करूँगा. अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये उसका पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स जो आई है यहाँ पे, उसका एक ओपिनियन है, ठीक है. अब जब वो ओपिनियन देता है या समटाइम्स हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन दो कंडीशन में वी कैन यूज विल इन प्रेडिक्शन सेंटेंसेस, राइट. बट नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखिएगा, लुक एट दोस क्लाउड्स इट्स गोइंग टू रेन, यानी क्लाउड्स को देखो, अब क्या होने वाली, बरसात होने वाली. तो एविडेंस है यहाँ पे, क्या दे रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लुक एट दोस क्लाउड्स, ये एक एविडेंस दे रहा है, ठीक है. अब जब हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम गोइंग टू का यूज करते हैं इन फ्यूचर प्रेडिक्शन, राइट. कि क्लाउड्स तो हमें विजिबल हैं, इसलिए क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है. ऑलराइट, सो तो कुछ फ्यूचर टेंस में गोइंग टू और विल को एक बार आप ओवरऑल देख लीजिए एक साथ. गोइंग टू एक्सप्रेस प्लान और फॉर द फ्यूचर, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंडपा टुमारो, मतलब उसने प्रेजेंट में ही कर लिया कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने जाऊंगा कल, ठीक है, इसलिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं. विल एक्सप्रेस अ सडन डिसीजन, विल क्या करता है, सडन डिसीजन एक्सप्रेस करता है. आई विल हैव फिश इंस्टेड ऑफ चिकन, मतलब मैं चिकन के बजाय क्या लेना पसंद करूंगा, मतलब क्या लूंगा, फिश को. एक्सप्रेस अ डिजायर टू एग्रीमेंट टू डू समथिंग, कोई डिजायर, कोई एग्रीमेंट किसी को चीज को करने के लिए. आई विल कीप माई प्रॉमिस, मतलब मैं अपने हमेशा प्रॉमिस पे रहूंगा, दैट टाइम हम विल का यूज करेंगे. बट बोथ कैन बी यूज टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन, बट गोइंग टू और विल both can be used to make the future prediction. How, see, she will be famous someday, she is going to be famous someday, मतलब दोनों में ही हम इसका यूज कर सकते हैं. बट हमेशा याद रखिएगा, एक में जो हम विल का जब यूज करेंगे फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, तो उसमें ओपिनियन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और गोइंग टू में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए. ऑलराइट, so will express future action decided at some moment of speaking, immediate decision होता है. I will have salad and the fish, ये immediate decision है, इसलिए will का यूज करता है. express a prediction based on personal opinion और experiences, मतलब personal opinion और experiences से हम predict करते हैं, ठीक है. prediction without evidence means will का जो prediction होता है it's always without an evidence. I think United will win the game means मैं सोचता हूँ कि यूनाइटेड क्या जीत जाएगी, गेम जीत जाएगी. एक्सप्रेस अ फ्यूचर फैक्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है, द सन विल राइज टुमारो. क्लियर, सो मीन्स इमीडिएट डिसीजन, प्रेडिक्शन विदाउट एविडेंस, और द फ्यूचर फैक्ट के टाइम पे हम विल का यूज करेंगे. अब गोइंग टू भी एक बार ओवरऑल देख लेते हैं. एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स, डिसीजन बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, प्रायर प्लान्स, ठीक है. कुछ प्रायर प्लान्स होते हैं, आई एम गोइंग टू विजिट माई ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. प्रेडिक्शन विथ एविडेंस, विल में विदाउट प्रेडिक्शन था, एविडेंस से, और इसमें था प्रेडिक्शन विद एविडेंस. लुक एट द दोस ब्लैक क्लाउड्स इट्स गोइंग टू रेन. एक्सप्रेस समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, मीन्स बस कोई चीज होने ही वाली है, राइट.
फ्यूचर में कुछ टाइम में बस होने वाली है और हमें पता है कि वो डेफिनेटली होगी, दैट टाइम हम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे गेट बैक, द बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड, पीछे हट जाओ क्योंकि बॉम्ब क्या होने वाला है, फटने वाला है। ऑलराइट, नाउ हियर सम यूसेज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। Will express a voluntary action, I will walk the talk. Will express a promise, I will call you other after class. Means promise कर रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा आफ्टर क्लास। अब be going to express a plan, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, I am going to be a doctor. Will और be going express a prediction. Alright, दोनों ही predict करते हैं। अब यहाँ पे I hope कि आपको इस अच्छे से समझ में आ गया होगा। Okay, so keep learning and thank you for listening.